Hello and welcome back to Dr. Shahin classes. And in today's video, you will understand what is Marxism, who are Marxist theorists, origin of Marxism, and the developers of Marxist theorists who developed Marxism. And apart from it, you will also come to know about the key focus and the themes and the key terms of Marxism. Today, I will deal all these points. Okay, so let me talk about actually what is Marxism and what does Marxism talk about. Actually, Marxism is class struggle and economic struggle. Class struggle and economic struggle, these are the key focus of Marxism. Marxism believes that class conflict, economic structure become the measure and big thing to exploit the working class of people. Okay, so let me talk about the origin of Marxism. Actually, Marxism originated in the mid 19th century. Marxism oris- originated in the mid 19th century, around 1844 to 1848. So, Marxist criticism flourished in the 20th century. Okay, it flourished in the 20th century. Marxism flourished in the 20th century. Now, I talk about the developers who developed Marxism. So, Marxism, it was developed by German philosophers Karl Marx and Friedrich Engels. Friedrich Engels and Karl Marx, these are the joint founder of this school called Marxism. Okay, here you can say Karl Marx and Friedrich Engels were the joint founders of this school called Marxism. So, Marxist, what about it? Marxist literary criticism. What is Marxist literary criticism? Marxist literary criticism is a way of analyzing and interpreting ideology and literature by focusing on the social, political, cultural influence of socio-economic conditions and class struggles on its प्रोडक्शन एंड मीनिंग. मतलब मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक मेथड है एनालाइज करने का, इंटरप्रेट करने का, क्या आइडियोलॉजी और लिटरेचर को कैसे बाय फोकसिंग ऑन सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इन्फ्लुएंस, यानी यह सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस को भी फोकस करता है जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और क्लास स्ट्रगल से इन्फ्लुएंस होता है. राइट, सो ये इसके बारे में बात करता है एक्चुअली मार्क्सिज्म. अब हम बातें करते हैं मार्क्सिस्ट थियरिस्ट. कई बार आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मार्क्सिस्ट थियरिस्ट से क्वेश्चन आते हैं. आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से ऑप्शन चूज करना होता है कि उसमें से कौन सा मार्क्सिस्ट थियरी है या नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो मार्क्सिस्ट थियरिस्ट आर कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लुइस अल्थुसर, रेमंड विलियम्स, टेरे एगल्टन, जॉर्जी लुकेस, पियर एबोजी, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Theodore Adorno, Antonio Gramsci, and Heinrich Marx. So these are the very important developers of Marxist. Okay, so these are called Marxist theories. Now I talk about the key focus of Marxism. Means what does Marxism actually talks about? What are the things that they cover in their school? So key focus, as I told you, the class conflict and economic structure are the major themes in Marxism. मतलब मार्क्सिज्म जो है क्लास स्ट्रगल. अब क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? क्लास स्ट्रगल जैसे हम सब सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में क्या है कि कई क्लासेस हैं और इन क्लासेस के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता रहता है सरवाइव करने के लिए. जैसे अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है. ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा यहाँ पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट.
अब जो है द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑपरेशन ऑफ द लोअर क्लास ऑफ पीपल। तो यहाँ पर जो है ना क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है यह मेजर रोल फंक्शन करता है लोअर क्लास पीपल को ऑपरेशन करने में। जैसे टेरे एगल्टन जो कि एक मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरिस्ट है और critic है, cultural theorist है, he defines Marxist criticism. He says that Marxist criticism is not merely a sociology of literature concerned with how novels get published and whether they mention the working class. It aims to explain the literary work more fully, and this means a sensitive attention to its forms, styles, and meanings, but it also means grasping those forms, styles, and meanings as the product of a particular history. मतलब ये कहते हैं कि जब इसका मतलब ये नहीं है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का कि यह एक सिर्फ सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर है, ऐसा नहीं है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो भी फॉर्म्स, स्टाइल्स या मीनिंग्स जो भी हम नॉवेल में हमें देखने को मिलता है उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, वह कहीं ना कहीं जो है प्रोडक्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर हिस्ट्री का। ओके, हेंस क्लास स्ट्रगल इज द की एसेंस ऑफ अ सोसाइटी विच मार्क्सिस्ट थियरिस्ट एम्प्लॉय टू स्टडी। यानी कि जो क्लास स्ट्रगल है वह की एसेंस होता है सोसाइटी का, और जो कि है मार्क्सिस्ट थियरी इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपोज करते हैं। और Marxist also believes in the concept that society is a living entity. Marxist also believes that society is a living entity, right? Hence, it keeps growing. It keeps growing and changing from time to time. ठीक है, right? So एक्चुअली जो ये मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट थियरी है, वह किस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं? वो कहते हैं कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वह एक लिविंग एंटिटी है ना, यानी कि जीवित है। It keeps growing and changing from time to time, and in the process of adjustment, class struggle takes place between the groups of people, classes of people and sections of people. यानी कि हमारा समाज जो है वह एक लिविंग एंटिटी है और यह ग्रो करता है, इसमें हम लोग रहते हैं, हम सब ग्रो करते हैं, इसलिए क्या है, सोसाइटी भी ग्रो करता है। और जब यह ग्रो करता है तो इसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं, अपर क्लास है और लोअर क्लास है, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इसी को मार्क्सिस्ट कहता है कि हम इसी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सो हियर फॉर कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी इटसेल्फ इज द प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज, ऑफ कंसेप्शन, ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑल दैट मेन से इमेजिन एंड कॉन्सीव। यानी मार्क्स कहते हैं कि कोई भी आइडियोलॉजी है ना, वो हमारे समाज में क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई नेचुरल नहीं होता। हम हमारे समाज में कुछ पार्टिकुलर वर्क के लोग हैं, किसी पार्टिकुलर क्लास के पीपल है जो उस आइडियोलॉजी को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऑल दैट मेन से इमेजिन एंड कॉन्सीव, यानी कि हमारे समाज में वही आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट या आइडियाज बनता है जो कि मेन कहते हैं, यानी कि मेल। लेकिन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट पेट्रियार्की की भी मार्क्सिस्ट बात करता है। ऑल दैट मेन से इमेजिन एंड कॉन्सीव, यानी कि मेन जो कहते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वही आइडियाज और कॉन्सेप्ट जो है वह डेवलप करता है। ठीक है, सो मार्क्सिज्म स्टेट्स दैट द रूलिंग क्लास मीन्स द बुर्जुआजी who own the means of production systematically exploit the working class of people, according to Marx, and that leads to alienation, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एस्केलेटिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट। और वो कहते हैं कि जब एक्सप्लॉइट होता है वर्किंग क्लास पीपल का, तो यह किस रूप में उभरता है? तो यह जो है यह एलियनेशन का फॉर्म लेता है, उन्हें एलियनेशन फील होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आती है एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू, एंड एस्केलेटिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सच इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस वुड फ्यूल अ प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन लीडिंग टू द overthrow of capitalism and the establishment of a socialist mode of production।
यानी कहते हैं कि इस तरह से ऐसा भी पॉसिबल है कि जो प्रोलेटरिएट है यानी कि जो वर्किंग क्लास है वह अगर एकजुट हो जाए, अगर रिवॉल्यूशन करे तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में, राइट। फॉर मार्क्सिस्ट दिस ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स a necessary step towards a classless, right? So मार्क्सिस्ट एक्चुअली वो कहते हैं कि दिस इज ए ट्रांजिशन, यह एक ट्रांजिशन होगा जब वर्किंग क्लास के पीपल रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट कैपिटलिज्म के, और यह एक ट्रांजिशन, और यह ट्रांजिशन किसको रिप्रेजेंट करता है, अ नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स अ क्लासलेस स्टेटलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। यानी उनका कहने का मतलब है कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की ज़रूरत होती है जो कि ट्रांजिशन के द्वारा ही पॉसिबल है। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या होता है? सो एक्चुअली द कम्युनिस्ट सोसाइटी रेफर्स टू अ सोसाइटी दैट इज क्लासलेस, स्टेटलेस, right, and moneyless society, implying the end of the exploitation of the lower class of people, right, and where the common ownership of the means of the production is available with free access to the production। ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है वो फ्री एक्सेस होना चाहिए, प्रोडक्शन का फ्री एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, जो सभी क्लास के लोगों को होना चाहिए, जिसमें कोई क्लास मतलब कि क्लास का डिवीजन नहीं होना चाहिए, अपर क्लास लोअर क्लास, स्टेटलेस होना चाहिए, मनी लेस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो इस तरह से कह रहे हैं। सो मार्क्सिस्ट थियरिस्ट टू बिलीव दैट द proletariat who are free from the restraints of property would spearhead the social revolution which would remove class differences, abolish the need for prostitution and the end of the oppression and subjugation of women। ये कहते हैं कि इतनी जो वर्किंग क्लास है अगर ये इनके अंदर यूनिटी हो जाए, अगर ये चाह ले तो ये बहुत कुछ हमारे समाज में ट्रांजिशन हो सकता है। यानी कि हमारा क्या क्या हो सकता है, तो यानी कि सोशल रिवॉल्यूशन होगा, और जब सोशल रिवॉल्यूशन होगा तो ये हमारे क्लास डिफरेंस को ख़त्म करेगा, जो क्लास डिस्पैरिटी है हमारे समाज में वो ख़त्म होगी, और इस तरह से जो रिस्ट्रेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म होगा, एंड विच वुड रिमूव क्लास डिफरेंसेस, जो क्लास डिफरेंसेस है हमारे समाज में अपर क्लास और लोअर क्लास का वो ख़त्म होगा, एंड अबॉलिश द नीड फॉर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो भी ख़त्म होगी, एंड द एंड ऑफ द ऑपरेशन एंड सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, यानी वीमेन का जो सब्जुगेशन है, ऑपरेशन है वो भी ख़त्म होगी। यानी मार्क्सिस्ट जो है वो सिर्फ कैपिटलिज्म की बात नहीं करती है, वीमेन सब्जुगेशन की भी बात करती है, राइट। सो ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट फ्रेडरिक एंजल्स जो है मार्क्सिस्ट थियरिस्ट, इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड the state says that working class men have no property to bequeath the monogamy। ये कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास के पीपल है उनको प्रॉपर्टी होती नहीं है टू bequeath द मोनोगमी को फॉलो करने के लिए इम्पोज्ड बाय द प्रॉपर्टी राइट्स इन द बुर्जुआसी फैमिली। यानी कि क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी होती नहीं है तो ये मोनोगमी को कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, ऐसा इनका कहना है फ्रेडरिक एंजल्स का। देयरफॉर मैरिज among the proletariat यानी working class is a voluntary association rather than a contract to protect wealth as they are without wealth। यानी कि जब वेल्थ होगा तभी किसी चीज़ को फैमिली को या जैसे कि अगर फैमिली बड़ी है तो उसको क्या करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वेल्थ होनी चाहिए। तो ये कहते हैं क्योंकि वर्किंग क्लास पीपल हैव नो वेल्थ, दैट्स वाई दे डोंट मेंटेन सच टाइप ऑफ custom and system। So Engels also further argues that the working class women must enter into public industry which will take them to the step of liberation। He talks about here women liberation, how women are subjugated। Actually in this book the origin of the family, private property and the state, Frederick Engels not simply talks about Marxism, he also talks about the development of patriarchy and how matriarchy shifted to patriarchy, how women's right early in the ancient time, how women occupied lots of right when due to the passage of time they lost their rights and it shifted to men। So these all things he talks in this book। And next of the thing he says that he talks about the liberation of men, that is the domestic slavery, कि औरतों के घर में कैसे स्लेवरी होता है, that he talks about कि अगर फीमेल यानी औरत अगर डोमेस्टिक स्लेवरी से अगर निकल जाए तो उनका लिबरेशन होता है, राइट। ही टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो क्या कहने का मतलब है कि
और जो फीमेल होती है, फीमेल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन डोमेस्टिक स्लेवरी। कहीं ना कहीं फीमेल को लगता है कि जो वाट एवर वी आर डूइंग इनसाइड द वर्क इनसाइड द होम, दैट्स ओके, बट दैट इज नॉट काउंटेड इन द वर्क एक्चुअली, राइट? So now I talk about, that is very important term, dialectical materialism. So Marxist and Friedrich Engels terms, they jointly talk about dialectical materialism that emphasizes confronted problems of people in their day-to-day life to survive, which may include the conflicts between class, socio-economic condition and gender conflicts, and which would result in a new system. The language of the rich class differs from the poor class because language is governed by the financial condition. मतलब dialectical materialism actually, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो रिच क्लास पीपल का जो डायलेक्ट होता है, जो लैंग्वेज होता है, उन्हीं का कॉपी किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है लोअर क्लास के पीपल के, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं क्या है, लैंग्वेज इज गवर्न बाय द फाइनेंशियल कंडीशंस। लैंग्वेज भी फाइनेंशियल कंडीशन से गवर्न किया जाता है। दैट्स वाई लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द लोअर क्लास, उनको कॉपी किया जाता है। दैट इज व्हाट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म सेज। So now I talk about base and structure. Base and structure. These are the base and superstructure. These are the two parts of our society according to Marxism. ओके, मार्क्सिज्म के हिसाब से दो पार्ट है हमारी सोसाइटी का। द बेस इज द एवरेज इनकम ऑफ एनी सोसाइटी विच रेफर्स टू द पावर ऑफ परचेजिंग एनीथिंग। यानी कि जो बेस है, बेस का मतलब है कि जो पावर ऑफ परचेजिंग एनीथिंग, यानी जो कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके पास पावर होता है किसी भी चीज़ को खरीदने का, ठीक है। और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर इज द आइडियोलॉजी ऑफ आर्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली एटसेट्रा। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी, आर्ट, कल्चर, रिलीजन, फैमिली एटसेट्रा, इनके थ्रू, ये सब सुपर स्ट्रक्चर में आ गया आपको, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फैमिली एटसेट्रा, इनके थ्रू यह बेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोमोट करते हैं। सो इन मार्क्सिज्म द बेस विच इज द इकोनॉमिक फाउंडेशन, तो यानी कि आपका जो बेस हो गया वह हो गया इकोनॉमिक फाउंडेशन हो गया, एंड दैट सेव द सुपर स्ट्रक्चर विच इज सोशल आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन द रूलिंग क्लास पावर। यानी कि जो पावर होता है रूलिंग क्लास का, उसको मेंटेन करता है क्या, ये बेस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो द बेस इन कैपिटलिज्म, द relationship between the base and superstructure can be understood in this way. Base means the private ownership of banks, factories and wage laborers, and मतलब जो कैपिटलिज्म में जो बेस है वह है हमारा एक्चुअली जो है वह किस तरह समझा जाना चाहिए कि बेस जो होगा प्राइवेट ऑनरशिप हो गया किसी भी सपोज बैंक्स का, फैक्ट्रीज का या वेज लेबर का। लेकिन सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया कि लॉज प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि उस चीज को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाया जाता है, कुछ आइडियोलॉजी क्रिएट किया जाता है, जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। सो द बेस शिफ्ट द सुपर स्ट्रक्चर आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन द रूलिंग क्लास पावर। In this way, base governs the superstructure and vice versa। यानी कि इस तरह से जो बेस है वो सुपर स्ट्रक्चर को गवर्न करता है और वाइस वर्सा है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मार्क्सिज्म से रिलेटेड वह है थियोरी ऑफ कमोडिफिकेशन। थियोरी ऑफ कमोडिफिकेशन क्या है? दैट रेफर्स टू द value the things not as genuine requirement but to impress and show off others in order to gain status in society। यानी इससे का मतलब क्या है? कमोडिफिकेशन, मार्क्सिज्म कहते हैं कि कमोडिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, हमारे समाज में एक ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं जो कि किसी भी चीज को, उसके थिंग्स को जेन्युइन रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं खरीद करके बल्कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए खरीदते हैं, ठीक है, जो कि हम उसको सोसाइटी, जिसको हम स्टेटस के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ हाई ब्रांड का सामान खरीद लेना, जैसे सपोज उसकी वो एबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ वो खरीद पाए, लेकिन फिर भी उस चीज़ को खरीद करके लोगों को दिखाना, यानी कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए दिखा रहा है, वो जेन्युइन रिक्वायरमेंट के लिए नहीं खरीद रहा है। सपोज अब किसी की
पास इतना पैसा नहीं है कि वो आईफोन खरीद सके, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको खरीद ले, ठीक है। तो वो क्यों खरीद रहा है? वो इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको जेन्युइन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा उसको क्या करना है, शो ऑफ करना है सोसाइटी के लोगों को, इम्प्रेशन क्रिएट करना है। तो इसी को हम कहते हैं कॉमोडिफिकेशन मार्क्सिज्म के लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फॉल्स कॉन्शसनेस, जो कि मार्क्सिज्म से रिलेटेड टर्म है। So Frederick Engels used this term false consciousness in 1893 in a letter to French Marie by describing the situation where a subordinate class willfully embodies the ideology of the ruling class। यानी कि फॉल्स कॉन्शसनेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि जो सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं, यानी कि प्रोलेटरिएट, यानी जो लोअर क्लास के लोग होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वह जानबूझकर मतलब खुशीपूर्वक जिसको कहते हैं हैप्पीली, वह आइडियोलॉजी को, रूलिंग क्लास के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स सपोर्ट द पॉलिसीज लाइक टैक्स कट्स फॉर द वेल्दी with the assumption that it will benefit everyone while it mainly benefits the rich। यानी कि उनको लगता है कि जो पॉलिसी है टैक्स कट्स का, ये सिर्फ वेल्दी को ही या सबको फायदा पहुंचाएगा टैक्स कट। तो इसलिए जो वर्कर्स क्लास होते हैं, जो प्रोलेटरिएट्स होते हैं, या इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन रियलिटी क्या है, यह सिर्फ वेल्दी लोगों को ही, जो हमारा डोमिनेंट क्लास पीपल है, कैपिटलिस्ट है, उन्हीं को यह फायदा पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे सिस्टम जिसको वर्किंग क्लास सपोर्ट करना अपर क्लास के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए, जिसे उससे लगता है कि यह सबको बेनिफिट पहुंचाएगा, लेकिन यूजुअली यह उसको वर्किंग क्लास को बेनिफिट ना पहुंचा करके यह अपर क्लास, डोमिनेंट क्लास यानी रूलिंग क्लास को यह पहुंचाता है फायदा, उसे हम कहते हैं फॉल्स कॉन्शसनेस मार्क्सिस्ट के थियरी में, ठीक है। सो इन दिस वे थियरीज अब आपको देखने को मिलता है, थियरीज एंड आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म इन 3 वर्क्स। आपको ये पढ़ना है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय फ्रेडरिक एंजल्स, प्रीफेस टू कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड डास कैपिटल और कैपिटल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि अगर आपको मार्क्सिज्म को और भी डिटेल में एक्सपैंड करके पढ़ना है, देन यू कैन रीड ऑल द 3 बुक्स। ओके, थैंक यू।